Guys, a shocking update is out. Infosys sending the what mail? Believe me, guys. I just got one comment and I just go through the WhatsApp groups plus Telegram तो बंद है तो यहाँ से हमें पता चला है कि some of students are getting the Infosys rejection mail. Yes, you heard it right. Rejection mail. Whoever watching my video, if you got the rejection mail, then please guys comment down that you are rejected and please mention your date because they are sending the rejection mail for 24-25 batch. So this is insane breaking news, guys. So please watch video till end. Important update: Infosys SP DSC candidate. If you appeared for the Infosys SP and DSC virtual assessment, this update can directly impact your selection result. Email have started, like Infosys has officially started sending the result related emails candidate who appeared on 17th May. ये मैं 26 बैच की बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि काफ़ी लोगों का जो था ना वो रिकॉर्डेड हो चुका था। मतलब यहाँ 24, 25 और 26 मोस्टली जो यहाँ पे देखने मिला है अभी रिजेक्शन वो 26 बैच वालों को मिला है आफ्टर सबमिटिंग the successful completion of the assessment because very few candidate able to submit the successful exam of the online virtually conducted by Infosys for 2026 batch, and they got the recorded successful mail. After that they are receiving the rejection mail or result, we can say, are receiving confirmation like your assessment has been successfully submitted. ठीक है. Plus, this means evaluation process is active. Result rollout has already started. Expected result timeline. Now coming to the most important question. When will result come? देखो यहाँ पे expected window थी 25th May to 31st May. Some candidate are already getting updates. Some other candidate can expect a result very soon. Now rejection mail, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ. Rejection mail, why it's happening? Now listen carefully. Many candidate are getting rejection mail even after solving question fully. मतलब टेस्ट केसेस मोस्टली जिनके चले हैं ना उनको भी यहाँ रिजेक्शन मेल देखने मिल रहा है. रीज़न: इन्फोसिस यूजिंग स्ट्रिक्ट एआई बेस्ड प्लैगरिज्म डिटेक्शन. अब तुम यहाँ पे एक चीज़ क्लिक करोगे, बोलोगे भैया हाँ ये चीज़ रियल हो सकती है. वाई? क्योंकि इन्फोसिस ने अभी पोस्टपोन कर दिया है. ठीक है. अब जिन जिन का यहाँ पे सबमिट सक्सेसफुली हो गया था उनको रिजल्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है 26 बैच वालों को. बट यहाँ पे मोस्टली सबका पोस्टपोन हो गया था. वाई? व्हाट इज़ द रीज़न? जो कि इन्फोसिस ने ऑलरेडी कहा था एआई प्लैगरिज्म. Because of AI plagiarism, they will announce the new date very soon. So, but you successfully submitted the application or exam. So you receive the recorded successfully submission mail. After that, they are sending the rejection mail because of the AI strict based plagiarism detection. अब तुमने अगर यहाँ पे कोड कॉपी किया है विदाउट जस्ट चेंजिंग द थिंग्स और थोड़ी बहुत चेंजेस की है तो ये AI प्लेगरिज्म की वजह से यहाँ रिजेक्शन का मेल आ रहा है. सो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है गाइज. ये काफ़ी जगह हमको यहाँ पे रिजेक्शन के कमेंट्स और मेल्स आ चुके हैं. सो उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ और ये हो रहा है. अभी तुम कमेंट अगर इस वीडियो को देखोगे तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे रिजेक्शन की मेल आ चुके होंगे. तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना. सो व्हाट दे चेक एंड हाउ दे कॉट दैट दिस इज़ अ प्लेगरिज्म डिटेक्शन. सो द थिंग इज़ कॉपीड कोड फ्रॉम एआई टूल्स. पहली चीज़, सेम लॉजिक यूज बाय मल्टीपल कैंडिडेट. क्योंकि यहाँ पर देखो सिर्फ तुम अगर सोचो कि भैया वेरिएबल चेंज करते हैं तो काम हो जाएगा, नहीं भाई. फ्लो देखो ना तुम. फ्लो क्या है तुम्हारा? सेम फ्लो, सेम एल्गोरिदम, सेम एग्जीक्यूशन हो रहा है कि ये हो रहा है फिर ये, मतलब सेम स्ट्रक्चर में अगर बंदा काम कर रहा है तो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाओगे. मैचिंग सॉल्यूशन फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेज. सो इवन इफ़ योर आंसर इज़ करेक्ट but if it's not unique you can get the rejection mail. This is the main thing. Biggest mistake you must avoid that if your exam is scheduled next like 31st May. This is critical. ठीक है. मतलब ये मैं अपकमिंग बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ. सपोज 31st को छोड़ के हम यहाँ पे 29th जून कर देते हैं. इफ़ 29 जून फॉर एग्जाम्पल इज़ द एग्ज़ाम, सो डोंट कॉपी पेस्ट कोड फ्रॉम AI टूल्स, इंटरनेट प्लस फ्रेंड्स. मतलब जो भी शेयर कर रहा है वो सब मत करना बिकॉज सिस्टम विल डिटेक्ट इंस्टेंटली. और अब जो न्यू डेट आएगी वो तो बहुत ही हार्ड प्लेगरिज्म लगाने वाले हैं. प्लस यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन होंगे उसके बाद तुम एग्ज़ाम दे पाओगे. और मे बी अब ये वर्चुअल की जगह ऑफलाइन कर दिया जाए. ठीक है. बिकॉज ऑफ AI डिटेक्शन. Now, a smart strategy to clear the test. Here's what you should actually do. AI use only to understand the question. Don't copy the solution because this will work, but this will not work, guys. And write your own logic. Focus on original approach.
सॉल्विंग 1-2 क्वेश्चन परफेक्टली इन बेटर देन कॉपिंग ऑल, ठीक है। ट्राई टू पास मैक्सिमम टेस्ट केसेस, फोकस ऑन क्लीन यूनिक कोड, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि टेस्ट केसेस ज़्यादा पास कर लिए, ये मैटर करता है कि टेस्ट केसेस ज़्यादा पास कैसे हुए हैं। एआई से हुए तो रिजेक्ट हो जाओगे, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया हमने, सबसे ज़्यादा टेस्ट केसेस पास करने के बाद भी ही गॉट द रिजेक्शन मेल। सो यहाँ पे मैटर ये करेगा कि टेस्ट केसेस किस लेवल पे पास किए है, ये खुद की अप्रोच से हुए हैं कि एआई कॉपीड है। सो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बहुत काम आएगी ड्यूरिंग एग्जाम। डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, इफ स्टक मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम बैक लेटर। सो मैक्सिमम स्कोर विथ योर ओन लॉजिक विल गिव यू द selection in the interview. Now technical issue, don't do these immediately. If you face any technical error during exam, immediately send email to Infosys team, use proper format, explain the issue clearly. देखो मैं ये अपकमिंग फ्यूचर के लिए ना तो मैं अभी से प्रिपेयर कर रहा हूँ गाइस, अभी से दिमाग में चढ़ा लो कि ये चीज़ें करनी है। मैनी कैंडिडेट हु रिपोर्टेड इशू गॉट रीशेड्यूलिंग एग्ज़ाम, जो कि हमने देख रखा है। तो अगर ऐसा फिर कभी आता है इन फ्यूचर, जो कि आएगा नहीं क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, मतलब इन्फोसिस बड़े लेवल पे तगड़ा इन्फोसिस का सिस्टम बना रही होगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। बट ये एक बैकअप के तरीके से है कि अगर ऐसा कुछ होता है इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। फाइनल एडवाइस फॉर 2026 बैच, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस माइट बी वन ऑफ द लास्ट मेजर अपॉर्चुनिटी गाइस, क्योंकि अब जो यहाँ पे न्यू डेट आएगी ना, दिस विल बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर फिर प्लेगरिज्म आएगा तो रिजेक्शन होगा, लेकिन हाँ इनका सिस्टम अच्छा वर्क करेगा, इनकी तरफ से कोई भी इस बार फॉल्ट देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये लोग टाइम दे रहे हैं, इसलिए एग्ज़ाम की डेट अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, ये सिस्टम को कंपैटिबल बना रहे होंगे, तो इनकी तरफ से अब कोई भी वो नहीं होगा पोस्टपोन कैंसिल। बस हाँ अब यहाँ पे एआई प्लेगरिज्म डिटेक्शन चेक किया जाएगा, ठीक है। सो प्रिपेयर डीएसए फॉर दिस, अवॉइड एआई डिपेंडेंसी, स्टे काम ड्यूरिंग टेस्ट, एंड योर फोकस शुड बी अंडरस्टैंडिंग लॉजिक, building and consistency. This will work. And comment down, do you receive result mail or not, your exam date plus let's track update together। अब एग्ज़ाम डेट की कहने का मतलब ये है कि 24-25 अगर किसी का अपकमिंग इंटरव्यू या कुछ भी चल रहा है वो बता देना, बाकी 26 का तो अभी कुछ नहीं आया है, वो तो मैं बता ही दूंगा। सो डोंट वरी गाइज, बट फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस, दीज इंस्ट्रक्शंस आर फॉर जस्ट फॉर यू फॉर अपकमिंग फ्यूचर इंटरव्यू एंड फ्यूचर टेस्ट फॉर 2026 बैच, क्योंकि अभी तो 26 बैच वालों का ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो अभी बहुत बड़े लेवल पे होगा, बट हाँ यहाँ पे सिस्टम बहुत ज़्यादा और एआई प्लेगरिज्म की डिटेक्शन जो होगी ना वो एनहेंस करेंगे, एडवांस लेवल पे जाएगा। और आई थिंक यहाँ पे अगर ऑफलाइन कर दिया ना तो भाई ख़त्म है तुम्हारी कहानी, सीधा रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिलेंगे, क्योंकि सारे ज़्यादातर कैंडिडेट जो होते हैं वो भाई इंटरनेट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे प्रिपरेशन कर लो, अभी टाइम है तुम्हारे पास, और जब टाइम नहीं होगा ना तब तो मैं रिग्रेट होगा अगर ऑफलाइन कर दिया गया इस बार। तो प्लीज़ कमेंट डाउन योर क्वेरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।